लोक निर्णय 2024। Good evening, listeners. Welcome to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I'm Sonu Sood with my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनाव की तैयारियों के बारे में, जानेंगे चुनाव प्रचार के बारे में। आज स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक नीलू रंजन। नीलू, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। And before we start with the election updates, first the headlines. Campaigning intensifies for third phase of general elections due on the 7th of May. ECI orders repolling in 6 polling stations of Outer Manipur Parliamentary Constituency on Tuesday. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses public rallies at Belagavi, Sirsi and Davangere in Karnataka. And senior Congress leader Rahul Gandhi campaigns for his party in Kendrapara, Odisha. आम चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। चुनाव आयोग ने बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर 30 अप्रैल यानी मंगलवार को पुनर्मतदान का दिया आदेश। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी, सिरसी और दावणगेरे में जनसभाएं की और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रापाड़ा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। Campaigning has intensified for the third phase of general elections, with top leaders of major political parties making strong pitch to woo the voters through rallies and roadshows across the country. 95 parliamentary constituencies across 10 states and 2 union territories will go to polls in this phase on the 7th of May. 1,351 candidates are in the fray in this phase. और निर्वाचन आयोग ने बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 30 अप्रैल को 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के निर्देश दिए हैं। यह मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इन निर्वाचन केंद्रों पर 26 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर दिया गया है। इनमें से 5 मतदान केंद्र उखरूल में हैं और 1 केंद्र सेनापति जिले में है। In Karnataka, Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addressed public rallies at Sirsi in Uttar Kannada and Davangere today. Speaking on the occasion, Mr. Modi assured of his guarantee to make India powerful, ensure security and development. He said that encouragement to millets, separate ministry for fisheries and Kisan credit card to fishermen, Matsya Sampada Yojana, smart cities, new railway lines and an increase in the national highways from 24 to 47 in Karnataka have benefited people. Taking on the Congress government in Karnataka, he said the bomb blast in Bengaluru and other law and order issues in the state are due to the vote bank politics by the Congress party. He also accused the Congress government in the state of diverting 11,000 crore rupees SC/ST funds for other purposes and cutting down 4,000 rupees given to the farmers by the previous BJP government under PM Krishi Samman Nidhi Yojana. He said the state government has left no funds for development. He also called upon voters to come out and vote in large numbers on May 7th. प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से छोटे किसानों की लागत को कम करने और कृषि उपज के लिए बाजार खोलने में मदद की है। आज कर्नाटक के बेलगावी में एक चुनाव सभा में उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता से 10 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुंचा है और किसानों को इथेनॉल मिश्रित ईंधन से 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। Senior Congress leader Rahul Gandhi today stepped up his party's Odisha campaign at Salipur under Kendrapara Lok Sabha constituency. Mr. Gandhi promised Pehli Naukri Pakki scheme for the unemployed youths if his party is voted to power at the centre. Earlier, Mr. Gandhi garlanded the statue of Utkal Gaurav Madhusudan Das on his birth anniversary at his native place Satyabhamapur in Cuttack district.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में राष्ट्र की वैश्विक छवि में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। गुजरात के आणंद जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की भारत की यात्रा को कोई बाहरी ताकत रोक नहीं सकती। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और नया बनाने की गारंटी है। Senior Congress leader Abhishek Manu Singhvi accused the ruling Bharatiya Janata Party of undermining democracy. Speaking at a press conference in Ahmedabad today, Singhvi highlighted the recent victory of the BJP in the Surat Lok Sabha seat as a violation of democratic principles. He alleged the BJP of misusing money, machinery and manpower. तेलंगाना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देंगे। सीपीआईएम के नेताओं ने कल इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। दोनों पार्टियों ने भोंगीर को छोड़कर बाकी जगहों से अपना नाम वापस ले लिया है। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस की इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाकर की गई थी। नीलू जी, आप क्या कहेंगे? 95 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई हैं, उनमें 7 मई को अब तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और 1351 कैंडिडेट्स हैं। किस तरह का आप गहमा गहमी देख रहे हैं? तीसरे चरण में 2 फेजेस में हम अच्छा रिस्पांस देख चुके हैं। देखिए, ये जो है 95 सीटों पे, इसमें 26 अकेले गुजरात से आती है और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अलग अलग जगहों से सब सीटों पे है। छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी। तो ये अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो बहुत ही अपनी ताकत झोंक चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार हर दिन लगभग 3-4 सभाएं कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरीके से चुनाव प्रचार तेज हुआ है। सब तेजी से कर रहे हैं और सबने पूरी ताकत झोंक रखी है। और ये जो फेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है, क्योंकि अगर ये फेज हुआ तो लगभग आप समझिए कि 280 के आसपास। नहीं, लेकिन एक सवाल है सोनू, एक सवाल ये है कि पहले फेज में हमने देखा कि जो मतदान का प्रतिशत था और वो चिंता का विषय था। हालांकि दूसरे फेज में उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, तो ये चर्चा हो रही थी कि मतदाता उदासीन क्यों है। तो अब आपको क्या लगता है, मतदाताओं में उदासीनता जो पहले फेज में छाई थी, क्या अब तीसरे में और टूट जाएगी, वोट प्रतिशत और बेहतर होगा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मतदाताओं में जो उदासीनता है उसके पीछे ये कारण है कि एग्रेसिव वोटिंग नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी होती है जिसमें लोग निकल के सरकार बदलने के लिए वोट करते हैं, वो कहीं नहीं दिख रहा है। प्रो इनकम्बेंसी में भी लोग वोट करते हैं कि भाई निकल के सरकार को बनाना है। तो दोनों तरफ, जैसे 2014 में देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी के कारण वोट प्रतिशत बढ़ा था, और 2019 में आप देखेंगे तो दोनों तरफ के एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी दोनों तरफ से एग्रेसिव वोटिंग हुई थी, जिसके कारण से मत प्रतिशत और बढ़ गया था। 67% वोट था 2019 में। बिल्कुल, तो वो ज्यादा बढ़ गया था। इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि लोग जाके प्रेरित हों कि भाई मुझे वोट डालना है सरकार को बचाने के लिए या सरकार को हटाने के लिए। तो जो कमिटेड वोटर है, जो जाके देता है वोट की हमें देना ही देना वोट है, तो वो तो जाके वोट कर रहा है। लेकिन जो वो वाले जो प्रभावित होते हैं चुनावों से या जो किसी मुद्दे को लेके जाते हैं, वो नहीं निकल रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है। इनफैक्ट यूपी, बिहार, महाराष्ट्र यहाँ पे कम है जो वोटिंग टर्नआउट है। सो क्या उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ से माइग्रेंट्स बहुत हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं और फिर सब लोग वापस नहीं आते हैं वोट डालने के लिए? सो आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी रिमोट वोटिंग, डिजिटल एम्पावरमेंट के द्वारा हो सकती है? देखिए, डिजिटल वोटिंग की चर्चा शुरू हो गई है और लंबे समय से चल रही है, और इस बार कुछ जगहों पे जो खासतौर पे कश्मीरी माइग्रेंट हैं
उनके लिए व्यवस्था भी की गई है कि उनको अपने जगह पे जहाँ पे हैं वहीं से रह करके और अपने कंस्टिट्यूंसी कश्मीर में जहाँ है वहाँ के लिए वोट कर सकें। लेकिन अभी बहुत ही मतलब शुरुआती चर्चा के दौर में है ये, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक माइग्रेंट वोटर का सवाल है, ये आज का नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से बड़े पैमाने पे लोग बड़े महानगरों में रहते हैं और वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन अगर उनको आप देखेंगे कि एक दो पीढ़ी के बाद एक आध अगली उनकी पीढ़ी जो वहाँ होती है, जो वहाँ पे वोट अपना बनाती है, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वोटर हो गए हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे वोटर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ रहा है और यहीं पर उन्होंने अपना वोट बना लिया और यहीं मतदान करते हैं जी, सेकंड जनरेशन वोटर्स। आप सुन रहे हैं लोक निर्णय 2024, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के हो रहे चुनावों को लेकर, और तीसरे फेज का चुनाव होना है। और अब हम चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश और वहां से देखते हैं संजीव शर्मा जी अपनी रिपोर्ट में क्या बताते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी और अपने तालाबों के लिए विख्यात भोपाल लोकसभा सीट भाजपा का अवैध गढ़ है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल में 1957 से 1984 तक 27 साल तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 1989 से यहाँ भाजपा का कब्जा है। हालांकि नवाब पटौदी, सुरेश पचौरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को उम्मीदवार बनाने के बाद भी कांग्रेस भोपाल में फिर चुनाव नहीं जीत पाई है। भोपाल लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 भाजपा और 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। भोपाल लोकसभा सीट के लिए इस बार कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने भोपाल के महापौर रहे आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अरुण कुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया है। भोपाल लोकसभा सीट पर 23 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें करीब 11,91,000 से ज्यादा पुरुष और लगभग 11,27,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। जी नीलू, अगर थोड़ी सी भोपाल सीट पर चर्चा करें, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। लंबे समय से हालांकि वहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है, और साध्वी प्रज्ञा ने, जैसी कि हमारी रिपोर्ट में हमारे संवाददाता ने बताया कि 3.5 लाख से अधिक वोटों से गुजरात के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, नए चेहरे को उतारा है मैदान में। क्या वोटों का फासला यही रहेगा, कोई बदलाव देखते हैं आप? नहीं, देखिए वोटों का फासला बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर पिछली बार अगर आप देखेंगे 2018 के विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर देखेंगे जी, कि उसमें भाजपा की हार हुई थी, और 2019 में किस ढंग से भाजपा कमबैक किया और वहां 29 में से 28 सीटें जीतने में सफल रही जी। अब अगर इस बार का देखेंगे तो अभी जो 3-4 महीने पहले इलेक्शन हुआ, वो जिस ढंग से लैंडस्लाइड विक्ट्री भाजपा की रही है, तो वो लगता है कि जो एक मजबूत गढ़ जो पकड़ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो लंबे समय से भाजपा जहां पे बहुत मजबूत स्थिति में रही है, संगठन उनका बहुत मजबूत है, तो वहां कौन टिकट लेता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे चूंकि संगठन का काम बहुत अच्छा है, तो जिसको भी टिकट देंगे वो लंबे मार्जिन से जीतेगा। और चूंकि 89 से लगातार जीत रही है भाजपा, तो ये दिखाता है कि वहां उसकी जनता पे पकड़ बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। एंड नाउ वील गो टू गांधीनगर, फ्रॉम वेयर आर correspondent Aparna Khunt will be giving us the profiling of the Gandhinagar constituency. The Gandhinagar Lok Sabha constituency, named after the state capital Gandhinagar, has been a stronghold of Bharatiya Janata Party for over the last 3 decades. The constituency comprises 7 assembly seats, 5 from Ahmedabad district and 2 from Gandhinagar. It has consistently elected BJP candidates since 1989. The most notable MP from Gandhinagar seat was Lal Krishna Advani, who consecutively won from 1998 to 2014. In 2019 Lok Sabha elections, Amit Shah, the current Union Home Minister, contested from this seat and secured victory with a significant margin of over 5 lakh votes. Amit Shah is contesting again from this seat in this Lok Sabha polls. A total of 14 candidates are in the fray on this seat, including Sonal Patel from Congress, whose fate will be decided by over 21,82,000 voters. As the elections approach, all eyes are on this high-profile seat, with the BJP aiming to retain its dominance and opposition parties vying for a breakthrough.
गांधीनगर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, जहां से वाजपेयी जी और अडवाणी जी और अमित शाह जी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2019 में 17 कैंडिडेट्स थे एंड नोटा जो है उसको थर्ड पोजीशन मिली थी। 14 लाख से ज़्यादा वोट्स जो थे वो नोटा के लिए डाले गए थे। 14,000 सॉरी, नन ऑफ द अबव। तो ये थोड़ा बताएं कि ये जो 11 साल पहले ये नोटा की व्यवस्था शुरू हुई, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, देखिए, नोटा 14,000 हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां 5,000 से अंतर से जीत रहे हों, 5 लाख के अंतर 5 लाख से अंतर बहुत बड़ा होता है, और जहां पे लोग ये मान लेते हैं कि हम जिसको भी वोट देंगे वो हारना ही उसको है और हम नहीं देना चाहते हैं वोट उनको, तो वो नोटा पे दबाते हैं कि अपना एक विरोध करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमित शाह की जो वहाँ स्थिति यह है कि जब से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीतते थे, लेकिन पूरा कंस्टिट्यूंसी जो संभालते थे, प्रभारी होते थे, वो अमित शाह होते थे, सब कुछ अमित शाह देखते थे और लाल कृष्ण आडवाणी जीतते थे। 2019 में जब हुआ, पार्टी ने तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को हमें टिकट नहीं देना है, तो अमित शाह वहाँ आए, तो एक एक कार्यकर्ता को, एक एक गली को, सब कुछ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो गांधीनगर में एक बार नॉमिनेशन करते हैं, एक बार भी फिर चुनाव प्रचार करने जाते हैं, उनको पता है कि कहां कहां से वोट आएगा। तो उनकी इतनी अपनी पकड़ इतनी मजबूत है गांधीनगर पे, और लंबे समय से है, आडवाणी के समय से है, उतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। तो नोटा हो या कोई भी खड़ा हो, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ना है। आपको लगता है गुजरात में हैट्रिक रहेगा 26-26-26 इस साल भी? देखिए, गुजरात अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है, और कोशिश हुई कि भाई बीजेपी को तोड़ के कुछ संघर्ष भैया निकले कि बीजेपी को हराया जाए, सरकार बदली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर 2014 और 19 का इलेक्शन आप देखेंगे तो उसमें 60% से ज्यादा वोट से मतलब बीजेपी को मिली है। तमाम जो वहां पे अधिकांश जो उम्मीदवार हैं वो 50% से वोट लाके जीते हैं वहां पे। तो इतना स्ट्रांग होल्ड उनका है बीजेपी का, वहां पे कार्यकर्ता जो संगठन इतना मजबूत वहां पूरे राज्य में है। उसके बाद ये अनुमान लगाना कि कोई सीट हारेंगी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे चुनाव है, चुनाव में परिणाम जनता क्या देती है, और क्या राहुल गांधी जी कल वहां जा रहे हैं अपना प्रचार कुछ भी हो सकता है, वो 4 को पता चलेगा, 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का। कुल मिलाकर नीलू ये देखा जाए अगर कि 14,000 वोट नोटा को पड़े और नोटा को अगर एक कैंडिडेट मान ले तो वो तीसरे नंबर पे रहा है, यानी सीधा मुकाबला जो था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच में था, और वो भी फासला 5 लाख से अधिक वोटों का था। देखिए, हाँ, वो वहां पे है। पिछली बार जो है वो आप वहां पे नई पार्टी आई थी और विधानसभा में आपने देखा कि वो एक थर्ड फोर्स बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो जनता वहां पे है जी, वो बीजेपी के पक्ष में है, और या कहें कि जनता पे बीजेपी का पकड़ ज्यादा है वहां पे, और वो लगभग मतलब रिजल्ट बताया क्या होता है, लेकिन 26 की 26 सीटें जो हैं, चूंकि मार्जिन बहुत है वहां इनके पास। बिल्कुल। और अब गुजरात से पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र वो राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य को संसद में भेजता है, 48 सदस्य वहां से हैं, और महाराष्ट्र की सतारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वहां मुकाबला बीजेपी के उदयन राजे भोसले और एनसीपी के कैंडिडेट शशिकांत शिंदे के बीच में है। हालांकि शिवसेना भी एक तीसरे उम्मीदवार के साथ है वहां मुकाबले में। वहां से हम देखते हैं क्या कहती है हमारी रिपोर्ट प्रंथा की। सतारा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: वाई, कोरेगांव, कराड़ उत्तर, कराड़ दक्षिण, पाटन और सतारा। सतारा में लगभग 18,89,000 मतदाता हैं, जिनमें 9,59,000 पुरुष मतदाता, 9,30,000 महिला मतदाता और 76 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सतारा सीट पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले को मैदान में उतारा है, जबकि एनसीपी एसपी ने शशिकांत शिंदे को टिकट दिया है। उदयन राजे भोसले 2009, 2014 और 2019 में एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर सतारा सीट से विजयी हुए थे। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में वे एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल से हार गए। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी के आनंद रमेश थोरवाड़े और वंचित बहुजन अघाड़ी के कदम प्रशांत रघुनाथ भी मैदान में हैं।
तो ये सतारा महाराष्ट्र से हमारी रिपोर्टर प्रार्थना की रिपोर्ट थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सतारा इंटरेस्टिंग नीलू हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उदयनराजे भोसले, वो लगातार एनसीपी शरद पवार के साथ रहे थे और इस बार उन्होंने छोड़ा। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहिए। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चुनाव वो, क्योंकि वो एनसीपी का गढ़ रहा है और एनसीपी दो फाड़ है, जिसमें जो शरद पवार गुट है उनका कैंडिडेट वहां खड़ा है और जो अजीत पवार गुट है वो बीजेपी के साथ है। अब ये तय होगा, हम महाराष्ट्र में भी ये तय होगा कि असली शिवसेना कौन है, असली राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस कौन है। तो ये एक बड़ा वहां पे इंटरेस्टिंग है कि वहां न सिर्फ हार जीत का है, ये महायुति और महाअघाड़ी के बीच में है, क्योंकि असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन है, कौन असली लीडर है, इसका भी फैसला होना है। तो वो एक 2024 का चुनाव महाराष्ट्र के लिए जो है वो भविष्य की राजनीति किस तरफ जाएगी वो दिशा तय कर देगी। बिल्कुल। इनफैक्ट बारामती में बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिटिंग एमपी सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार की हैं, वो लड़ रही हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट, सुनेत्रा पवार के अगेंस्ट जो एनसीपी की हैं। बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूं कि असली एनसीपी कौन है, और वो अजीत पवार की पार्टी है या फिर शरद पवार की पार्टी है, ये फैसला कौन है, ये भी फैसला होगा। लोक निर्णय 2024 में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में रायपुर में बात करेंगे अपने संवाददाता विकल्प रंजन शुक्ला से। जी विकल्प जी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? कौन से प्रमुख मुद्दे छाए हुए हैं वहां पर? जी हाँ, यहाँ पर तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में, 7 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता जगह जगह सभाएं ले रहे हैं। अभी हाल ही में 26 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमित्रा में सभा ली थी और कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो कल बिलासपुर आ रहे हैं और वहां पर सभा लेंगे। जहां तक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके पिछले 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रही है, तो वहीं कांग्रेस मुख्य रूप से जो उसका घोषणा पत्र है उसकी बातों को वो जनता के बीच प्रचारित कर रही है। जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं सोनू? जी मैं ये जानना चाह रही थी कि 76.24% वोटर टर्नआउट रहा फेज 2 में, हालांकि वहाँ पर सेंसिटिव एरियाज थे। सो आपको लगता है कि वहाँ की जो जनता है वो जागरूक है और इस फेज में भी अच्छा हम वोटिंग परसेंटेज देखेंगे? जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर टोटल छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और जो अभी 2 चरण हुए हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें 11 में से 4 लोकसभा सीटों में यहाँ पर मतदान हो चुका है और उन चारों लोकसभा सीटों में जो कि नक्सल प्रभावित थी और काफी संवेदनशील मानी जाती थी, वहां पर मतदान प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। और अब जिन 7 लोकसभा सीटों में 7 मई को मतदान होना है वो उतनी संवेदनशील नहीं है और वो नक्सल समस्या से मुक्त है सीटें। तो निश्चित रूप से यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो प्रयास कर रहा है, कई तरह की स्वीप के अंतर्गत गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, कार रैली हो रही है, मोटरसाइकिल रैली हो रही है, क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। तो इसका असर देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से 7 मई को जिन 7 लोकसभा सीटों में मतदान होना है वहां मुझे विश्वास है कि वहां भी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। जी विकल्प आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस 7 सीटें और बची हैं, इसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा। बताएं। मैं एक छत्तीसगढ़ के बारे में, जो वहां पे मत प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे एक कारण है कि बहुत सारे जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वो 70 से उन लोगों ने कभी वोट डाला नहीं था, वो नक्सल के कंट्रोल में थे और वहां वोटिंग कहीं होता नहीं था। वो कभी पहली बार उन लोग इस बार वोट डाल रहे हैं और नक्सल के खिलाफ जो अभियान है वो तेज है और नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है वहां पे उन लोगों के लिए। और इस बार जो पिछले 3-4 महीने में 80 से ऊपर अधिक नक्सली जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, ये पहली बार इतना हुआ है। पिछले पूरे साल में 20 मारे गए थे। तो एक सुरक्षा की भावना लोगों में है और लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है।
जी बिल्कुल। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां भी तीसरे फेज के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और 10 सीटों पर वहां मतदान होना है। हमारे साथ सुशील तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, स्वागत आपका लोक निर्णय 24 में। कैसी तैयारी चल रही है तीसरे चरण के लिए? चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार जबरदस्त चल रहा है तीसरे चरण के लिए। हालांकि एक लंबा गैप है 26 तारीख से लेकर के 7 मई तक के बीच में, और संभवतः 7 चरणों में सबसे लंबा गैप इसी चरण के बीच में है। तो पर्याप्त समय है सभी पार्टियों के पास कि वो अपनी अपनी फील्डिंग कर सके, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर सके अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। और हमने देखा कि जिन सीटों पर 10 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां प्रधानमंत्री का भी रोड शो हो चुका है। बरेली में नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ। अखिलेश की लगातार समाजवादी पार्टी की रैलियां हो रही हैं। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद है, उनकी भी बहुत सारी सभाएं हुई हैं, और योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त सभाएं चल रही हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में आज भी हमने देखा कि अमित शाह जी ने जो है वरिष्ठ भाजपा नेता, उन्होंने कई रैलियां की हैं। आंवला में रैली हुई है, बरेली का जो दूसरा संसदीय क्षेत्र है। संभल में लगातार प्रयास हो रहा है। तो सभी पार्टियों की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को, अपने मतदाता को मोटिवेट करें ताकि वो वोट डालने के लिए बाहर आए। जैसा कि हमने देखा कि 2 चरणों में किस तरीके से मतदान प्रतिशत कम हुआ। तो सभी पार्टियों को इसको लेकर के थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है कि उनका वोटर कहीं पीछे न रह जाए। तो सुशील जी, कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, अगर ब्रीफली बता सकें, जिन पर केंद्रित है प्रचार? देखिए, प्रचार तो वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रचार कर रही है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पीडीए की बार बार बात करते हैं अखिलेश यादव, उस पर सवाल वो खड़े कर रहे हैं। उसको लेकर के जो सरकार की नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बार बार योगी सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान दलित उत्पीड़न और उससे जुड़ी घटनाओं को प्रमुखता से आकाश आनंद बार बार अपनी रैलियों में इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा जिस बेल्ट में जिस 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 4 सीटें जो है वो रुहेलखंड के इलाके की हैं। संभल है, आंवला है, बरेली है और बदायूं है। यहाँ पर विकास के साथ साथ जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, इन सभी चीजों पर जोर रहता है। और ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। खासतौर पे संभल, बदायूं का इलाका देखें तो यहाँ विकास को लेकर के लोगों की बड़ी मांग है। एकमात्र बरेली जो है वो प्रमुख शहर है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ 4 सीटें ब्रज क्षेत्र की हैं, जिसमें आगरा है। आगरा की एक दूसरी सीट जो है फतेहपुर सीकरी है, हाथरस है, फिरोजाबाद है। और आपको बताते चले कि ये इस बेल्ट में जो है 2 सीटें जो है वो इस मैनपुरी और एटा जो है वो, जिसे हम पारंपरिक तौर पर यादव परिवार का गढ़ कहते हैं, उस क्षेत्र की हैं। तो आलू यहाँ पर किसान बहुत उगाते हैं। आलू उत्पादकों की अपनी कोल्ड स्टोर से लेकर के विपणन की समस्या है। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे, बीएसपी ने 80 सीट्स में अपने उम्मीदवार उतारे। आपको लगता है ये त्रिकोणीय होगा या बीएसपी का अभी इतना आप नहीं देख रहे मजबूती? नहीं, देखिए, बीएसपी का एक मजबूत जो है दलित वोट बैंक है और मजबूत स्थिति में वहां रही है। और पिछली बार उसके 10 एमपी जीते थे, एसपी के साथ में था। तो बीएसपी को आप नकार नहीं सकते हैं। बीएसपी को आप नकार नहीं सकते हैं। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। एब्सोल्युटली। सो नीलू रंजन जी, यू डिस्कस वेरियस इश्यूज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।